Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Learn with Asma Azam. Today we are going to discuss what are the security threats prevention techniques. First we will discuss what are the security threats and what are the prevention techniques from these security threats. Let's start with types of security threats. There are 5 types of security threats which we will discuss in this lecture. The first one is spam. The second one is spyware. The third one is cookies. And the fourth one is phishing. And the last one is pharming. There are 5 types of security threat prevention techniques. For spam, we use spam filters. For spyware, we use antivirus software. For cookies, we use cookies management. And for phishing, we use recognizing phishing technique. And for pharming, we use guarding against pharming. Spam filters. What are the spam filters? Spam refers to unwanted messages that you receive on your email or phone. Spam filters are security programs that automatically identify and block unwanted, malicious, or phishing emails from reaching an inbox, typically achieving over 99.9% accuracy. Using AI, machine learning, and set rules, they scan email content, headers, and sender reputation, either deleting or moving messages to a junk folder. स्पैम आपके वो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो आप रिसीव करते हैं अपने फ़ोन में या ईमेल में. आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अपना ईमेल का फोल्डर ओपन करें तो वहाँ पर स्पैम के नेम से एक फ़ोल्डर बना हुआ होता है. ठीक है, वहाँ पर अनवांटेड मैसेजेस जो कि बल्क में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पैम फिल्टर्स उनको वहाँ पे मूव कर देते हैं. ठीक है. द सेकेंड वन इज antivirus software. We use spyware. Spyware is a type of harmful software that secretly monitor your activities on your computer and mobile phone. स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सीक्रेटली मॉनिटर करता है. बेसिकली इट इज़ वेरी मच हार्मफुल. We use antivirus software which protects your computer from harmful programs such as spyware. For example, if you download a file from the internet, antivirus software checks it for any hidden threats. ठीक है. So the third one is cookies. Cookies are the small files that websites place on your device when you visit them. कुकीज़ वो फाइल्स होती हैं जो कि वेबसाइट्स आपके डिवाइस पर उनको रख देती हैं ताकि जब भी आप अपनी उनकी वेबसाइट या उसको विजिट करें तो बार बार आपसे वो डेटा ना लिया जाए बल्कि वही जो पिछला डेटा उसी को यूटिलाइज किया जाए. इसके लिए जो टेक्निक है विच इज़ मैनेजिंग द कुकीज़. इट मीन्स डिसाइडिंग विच कुकीज़ यू वांट टू कीप and which ones you want to delete. For example, you can keep cookies from your favorite shopping website so you don't have to log in every time. ठीक है. And the fourth one is recognizing the phishing. What is phishing? Phishing is an attack that attempts to steal your money or your identity by getting you to reveal personal information such as credit card numbers, bank information, or passwords on websites that pretend to be legitimate. Phishing basically is a cyber attack where criminals send fraudulent messages designed to trick you into revealing sensitive information such as your passwords, your credit card numbers, or social security numbers. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली फ़िशिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसमें आपके पास कुछ इस तरह से मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों से कहा जाता है कि अपना जो है ये अपना ये हम आपके जो है वो बैंक से बात कर रहे हैं या ये कॉल्स आ गई हैं, आपका पार्सल रिसीव आप कर लें तो हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दें. तो ये बेसिकली आपके जो हैं ये फ़िशिंग अटैक्स होते हैं. इसके लिए आपके पास जो टेक्निक है विच इज़ रिकग्नाइजिंग फिशिंग इन्वॉल्व्स या रिकग्नाइजिंग द फिशिंग. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग दीज ईमेल्स एज फेक and avoiding clicking any links or providing any information. Sometimes ऐसा होता है कि हमें जो है वो इस तरह के व्हाट्सएप पर भी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपना जो डाटा है या उसको फिल कर दें या अपना जो है नेम बता दें, अपना मोबाइल नंबर बता दें या किसी भी फेक या जो लिंक्स आते हैं उन पे अवॉइड करना चाहिए और वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है.
The last one is farming. Farming is a type of online fraud where hackers send you to a fake website even if you type the correct address, like your bank's website, into your browser. Farming means redirecting the victims. Farming is more sophisticated attack described as phishing without a lure. It redirects you to a fraudulent website even if you type the correct website address into your browser. What are the techniques to avoid or to prevent from farming? To guard against farming, always check that website's address is correct and secure. What are the secure browsing habits? हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने जो है अपनी जो वेबसाइट हम यूज़ करना चाह रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या ब्राउज़र ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स आप पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है. चेक फॉर HTTPS. Always ensure the website address begins with HTTPS secure rather than HTTP and look for the padlock icon in a browser address bar. सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कोई भी वेबसाइट जो कि आपको लग रहा हो कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और आप किसी और वेबसाइट पर चले गए हैं, तो सबसे पहले आपने उसका ब्राउज़र चेक करना है और उसमें URL में देखना है कि क्या यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है या HTTP. HTTPS से जो भी वेबसाइट का एड्रेस स्टार्ट होगा वो सिक्योर होगा. HTTP से लिखा हुआ होगा तो इट्स मीन कि दैट वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर. वेरीफाई URLs. सेकंड काम आपने क्या करना है वो है अपना जो URL है उसको आपने वेरीफाई करना है. मैन्युअली चेक द URL फॉर माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल.com. आपको ये समझ आएगा कि ये भी example.com है लेकिन उसमें L की जगह पर 1 है. ठीक है, तो ये अगर आपका URL ठीक नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपकी जो है वो वेबसाइट ठीक नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ पासवर्ड मैनेजर. पासवर्ड मैनेजर्स वांट ऑटो फिल क्रीडेंशियल्स ऑन अ फेक साइट मेकिंग दैम एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिटेक्टिंग स्पूफ पेजेस. ठीक है, जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं उनको जो है उनको जो है ये वाला काम नहीं करना चाहिए कि जो क्रीडेंशियल्स हैं वो किसी भी साइट पे ऑटोफिल नहीं करने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. 2FA. टर्न ऑन 2FA या मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट अकाउंट्स. दिस प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल सेफ्टी नेट. Even if your credentials are stolen through a pharming attack, the attackers cannot log in. ठीक है, हम मोबाइल्स पर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखते हैं ताकि जो है वो हैकिंग से या स्टोलन जब मोबाइल अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इसीलिए होती है कि जितना ज़्यादा हो सके आपका जो भी क्रीडेंशियल्स हैं मोबाइल में जो भी डाटा है उसको उस पर कोई अटैक ना हो और उसको जो है वो सेफ रखा जाए. ठीक है, नेक्स्ट है जी एक समरी है हमारे इस पूरे लेक्चर की. आप देख सकते हैं इस पूरे समरी में आप देखेंगे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें स्पैम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, व्हाट आर द प्रिवेंशन टेक्निक्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर हमारी ही लेक्चर की समरी है. आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे से देखना है, इसको पढ़ना है और अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप लोग लाजमी मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आप इस समरी को लाजमी रीड आउट करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लाजमी पूछेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.